who has done the assignment जो हमने कल डिस्कस किया था? गाइस, जिसने भी असाइनमेंट किया ना, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो. Other than Rajiv, what about others? Okay. And for the problem, just text me over WhatsApp and I shall help you. And Anjali, that's okay if it's a screenshot. Just remember, after the class, you can show it or you can send it to me directly. हेलो। Yes or no? एक्चुअली मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बेसिकली हम लोग का कुछ ग्रुप नहीं है जहाँ पे मैं अपना क्वेरी रेज कर सकता हूँ। तो आप बता रहे हैं कि व्हाट्सएप करने के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ ग्रुप है नहीं। There, okay. I'll get the group open. अभी admins हैं. I'll ask somebody to open the group for you. Don't worry. ओके मैम, एक्चुअली सेम चीज़ मैंने सचिन को भी बोला हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सॉल्व तो हुआ नहीं है। I'll do that. Don't worry. ओके मैम, थैंक्स। Please make sure when the group is open, Sirif put your doubts there and nothing else. Yeah, that Anjali, that is because वो free websites है तो वो आपको एक limited information देगी. There's no entire information once you start paying them. So that's okay. Guys, the group is open. Post the class, you can put your doubts in the group and I can help you one by one. एक बार आप लोग ग्रुप भी चेक कर लो सो दैट अगर किसी को नहीं दिखता है तो लेट मी नो. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. किसी को कोई डाउट है अभी तक जो भी हमने करा है या व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड थ्रू, कुछ भी किसी को भी डाउट है? Ma'am, I have a question. It's just a misunderstanding, I believe. So there are primarily four type of keyword searches. One is long tail keywords, one is short tail keywords, one is branded keyword, and one is local keyword. Right? Uh, Should I say once again? yeah, no, go ahead. So these are the four primary types of keyword searches, and branded keyword and local keywords are a part of short tail keywords. Is that correct? They can be a part of long tail and short tail both. Okay, okay. That's it. Thank you.
Guys, anybody has any more questions? So, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि there are four types of keywords: long tail keywords, short tail keywords, branded keywords, and local keywords. To give you a recap, to give you a recap, लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं जिसमें बहुत सारे हम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, गूगल अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, काफी टू द पॉइंट होता है एंड इट्स नॉट वेरी ब्रॉड. बट शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर दोस जिसमें हम हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं. लेट्स से जस्ट लैपटॉप्स, और लेट्स से जस्ट दिस लैपटॉप्स अंडर 30K. So that is known as short tail keywords. मतलब I think अब नहीं होगा. Let me know if it still does. Then there are branded keywords. Branded keywords में when I write a particular brand का name along with my keyword, then it's known as branded keyword. And then we have local keywords जिसमें I put some location का name, that is known as local keywords. किसी को इसमें डाउट है तो let me know please. Okay. Um, there is one more thing known as competitor analysis. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is an SEO audit. Before competitor analysis, let's talk about what is an SEO audit. एक बात समझो, आज आपके पास कोई भी एक प्रोजेक्ट आया है टू स्टार्ट फॉर एसईओ. ओके. अब आपको क्या करना है? आपको ये पता लगाना है कि उस वेबसाइट में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं और उस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स है और उनका आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो. दैट इज नोन एज एन एसईओ ऑडिट. अब व्हाई इज एन एसईओ ऑडिट समझो. एवरी ईयर हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, राइट? वी गेट अ हेल्थ चेकअप डन, हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं. सिमिलरली एक वेबसाइट का हेल्थ चेकअप किससे होता है? एसईओ ऑडिट से. द टर्म इज नोन एज एसईओ ऑडिट. सो एसईओ ऑडिट, as I said, is like a health checkup of the website. वो आपको ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज जगह पर है, कौन सी चीज जगह पर नहीं है, कौन सी चीज को आपको एक वेबसाइट के एसईओ में सॉल्व करना है. When you look at it the other way, एसईओ एक वैसा तरीका है जिससे आपकी वेबसाइट को आप ऊपर रैंक करा सकते हो. अगर एसईओ में प्रॉब्लम्स है तो आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं जाएगी. और अगर एसईओ में प्रॉब्लम्स है, मान लो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी टॉप पे रैंक कर रही है, नाउ अचानक से सब प्रॉब्लम कम्स, बहुत बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, गूगल की कोई अपडेट आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन अ प्रॉब्लम लाइक दिस कम्स, तो क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट रैंक कर रही होती है वो डाउन चली जाती है.
तो लेट्स से फिलहाल वो फर्स्ट पेज पे थर्ड नंबर पे है, लेकिन क्या होगा कि कुछ भी इशू आने की वजह से जो आपने नहीं देखा या नहीं सॉल्व किया, उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट इट गोज डाउन. Maybe firstly it was in first page third number, now it's on second page first number. So you see a drop in rankings. Therefore, every time, every few months, even if you are consistently doing SEO of a website, it is important that you keep doing an SEO audit regularly. And if you are starting with a new project, maybe with your own website, maybe with a client website, or anything, it is important that you give them an SEO audit in order for them to understand कि उनके वेबसाइट्स में कितने प्रॉब्लम हैं एंड आप उनको सॉल्व करके क्या हेल्प कर सकते हो. सी, यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर देम बट दे डोंट नो कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से फायदा क्या है. So whenever you're taking on a new client, a new project, a new website for SEO, you have to do an SEO audit जिससे it gets them clear कि आप क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड उस प्रॉब्लम से उनकी वेबसाइट को क्या बेनिफिट होगा. Right? So in simple terms, SEO audit is what? SEO audit एक हेल्थ चेकअप होता है वेबसाइट का, जो आपको ये बताता है कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीजें आपको अप इम्प्रूव करनी है, so that you can rank higher on Google. Any doubts, guys? Please put in the chat box. Long and short of SEO audit is to give you a health checkup of website to make you understand what is working, what is not working, and what can you improve to rank it on Google. Guys, I think it's better that you guys write the definition of it. The definition is on the screen. Please ये definition लिख लो. Let me know when you're done.
है, समझा कर लिया। ओके गाइस, अब बात आती है कि हमने एसईओ ऑडिट करनी कैसे है, राइट? सो एसईओ ऑडिट 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अंडरस्टैंड, एसईओ ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। Now understand that this is divided into 5 parts and not in the way कि ये 5 तरीके की होती है. This is divided into 5 parts. So number one is a technical SEO audit. अब हमने टेक्निकल एसईओ ऑलरेडी हम कम से कम नहीं तो बहुत बार अभी तक रिवाइज कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते रह रहे हैं. कैन somebody please let me know what is a technical SEO? Technical SEO refers to the speed of the website, and it it also includes mobile responsiveness, so that the view of mobile should be good. Oh, sorry, the view of the website on the mobile should be good. I think that's Correct. Yes. And most of the problems would be solved by the developer, but theoretically you have to know what it is so that you can, when he's done with work, you can check it. Great. Okay. So there are 5 types. Number one is technical SEO audit. Now, technical SEO audit का मतलब क्या होता है? Technical SEO audit means कि मेरी वेबसाइट का स्पीड, मेरी वेबसाइट का, you know, what is the speed of my website? What is, as Rajiv just mentioned, क्या वो जल्दी लोड हो रही है? क्या वो, is it having any sort of broken links? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आती है टेक्निकल एसईओ ऑडिट में. स्क्रीन दिख रही है ना गाइस? ओके. तो टेक्निकल एसईओ ऑडिट में हम क्या क्या चेक करते हैं? नंबर वन, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं. नंबर टू, डज इट लोड फास्ट. नंबर थ्री, उसके पास HTTPS सर्टिफिकेट है या नहीं है. नंबर फोर, क्या कोई ब्रोकन लिंक्स हैं? ब्रोकन लिंक्स का मतलब क्या होता है? लेट्स से वेबसाइट में कुछ पेजेस ऐसे हैं जो दिख रहे हैं बट चल नहीं रहे. देखा है बहुत बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वो बोलता है कि ओ इट्स अ 404 एरर, या ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज नोन एज अ ब्रोकन लिंक. सो इफ यू हैव अ ब्रोकन लिंक इन योर वेबसाइट, आप अपने एसईओ को बहुत बुरी तरीके से हार्म कर रहे हो. सो यू डोंट have any broken links in your website
ever. अब उसके बाद आता है robots.txt फाइल एंड XML sitemap. ओके, robots.txt फाइल एंड XML sitemap क्या होता है मैं बताती हूँ. robots.txt फाइल, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फाइल. बेसिकली ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो सर्च इंजिन्स को बताती है कि कौन से पेजेस हैं. देखो, जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे अगर 20 पेजेस हैं तो आप उन 20 के 20 पेजेस को ही गूगल को दिखाओ, या आप उन 20 के 20 पेजेस को ही यूजर्स को दिखाओ. बहुत सारे वेबसाइट पे पेजेस होते हैं. अगर आप आज कोई वेबसाइट देख रहे हो जो 20 पेजेस की है, 30 पेजेस की है, तो उसमें बहुत सारे पेजेस ऐसे होंगे. मतलब इट माइट बी द वेबसाइट कैन बी ऑफ 50 पेजेस, बट आपको सिर्फ 20 पेजेस 30 पेजेस दिख रहे हैं सामने. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी आपका वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का है तो आपको सारे पेजेस गूगल को या आपको यूजर को दिखाने हैं. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. यू कैन चूज टू हाइड सम पेजेस. यू कैन टेल गूगल कि उसको कुछ पेजेस को क्रॉल नहीं करना है. हमने क्रॉलिंग का प्रोसेस पढ़ा था. आप ये बता सकते हो कि भाई ये कुछ पेजेस हैं, इनको क्रॉल नहीं करना, इनको अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करना, एंड एट द एंड ऑफ द डे इनको रैंक नहीं करना. तो ये आप किसकी तरह बताते हो? ये आप बताते हो robots.txt फाइल में. बेसिकली robots.txt फाइल एक कुछ ज्यादा चीज नहीं है. एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो ये बताती है गूगल को कि आपके वेबसाइट के कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना है, इंडेक्स नहीं करना है, और यूजर्स को शो नहीं करना है. गाइस, एनी डाउट? मैम Yes, इसका ma'am. कुछ एग्जाम्पल दिखा सकते हैं क्या मैम? Example, I will see because it's usually at the website backend, but I'll see. What else? Ma'am, I have a question. The thing is, you said कि वेबसाइट के कौन से पेजेस दिखाने हैं और नहीं दिखाने हैं. So Hmm. I didn't understand this because let's say I have a website and Hmm. I let's say I was working for Z5. So there are various pages of Z5 where they show various web series and various shows. So maybe they will rank their top shows and top web series at the first page, and in the sequence they will show for first page, second page, third page. But why will I say that you should not see these pages? I mean, if they are, let's say, if there are rankings of shows which are at the lowest level, maybe I would not want every person to see them, but I why would I want someone to hide them, that these are not my shows, these are somebody else's shows? So I didn't understand this idea. Could you please explain this? Anybody have any more questions? Ma'am, 404 is a part of SEO, technical SEO audit, ma'am. Yes, correct. Uh, okay. Rajesh, to answer your question in a very simpler way, समझो कि मैं किसी वेबसाइट का ना, लेट्स से आई हैव दिस वेबसाइट. Okay. सबको वेबसाइट दिख रही है? Yes. Okay. नाउ वी नो कि इसमें एक चेकआउट का पेज आता है. सबको पता है क्योंकि यहाँ Yes. पे प्रोडक्ट्स हैं. तो ये चेकआउट का पेज इस वेबसाइट में होगा. क्लियर? Mm-hmm. बट समझो मेरी बात.
हम उन पेजेस को बताएंगे, अंडरस्टैंड, हमको रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल में हम वो बताएंगे कि उसको पेजेस को रैंक करना है और कौन से पेजेस को रैंक नहीं करना है। नाउ व्हाई Okay. वुडंट आई वांट टू रैंक अ पेज? सोचो, इसका जो चेकआउट पेज है, जो फिलहाल कैसे आता है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया, आई एडेड इनटू कार्ट, ठीक है, आई विल पुट माय नंबर एंड कंटिन्यू एंड व्हाटएवर, राइट? Okay. Okay. Now when I reach the payment stage, that is the checkout page, right? अगर चेकआउट पेज सर्च इंजन रिजल्ट्स में डिस्प्ले हो रहा है, रैंक कर रहा है, तो उसका कोई सेंस है? नहीं, हाँ. Because until and unless somebody has added a product to their cart and went to the buy now option, तब तक चेकआउट पेज कोई मतलब नहीं है। नहीं है. Right. दैट करेक्ट? Right. तो Right. चेकआउट पेज वुड बी समथिंग जो मैं रैंक नहीं करवाना चाहूंगी, Right. and that is why that would be a page that would be hidden. It would only come when a user is going to what? When a user is purchasing something and they have reached the process. Number one. Example number. Number two. You see this. This is the login. आ रहा है login page. Do you see this login page? Yes. अगर मैं simply ये login page को rank करवा दूंगी, does that make sense? No. वो अगर रैंकिंग में ये आ जाता है पेज, तो यू नो किस में आएगा? वेयर either somebody's types login page or something, right? Yeah. But not everybody can log in because they don't have an account. Mm-hmm. Got it. Now they can create an account. Okay. But when you create an account, do you see it goes to a new link? Mm-hmm. So create and login are something that wouldn't again appear in the search result. क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है for new users. Mm-hmm. And those who were old users, they know how do they log in. They come to the website and they go here and they log in. Okay. I'll give you another example. Let's say मेरा कोई एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है? Mm-hmm. I'll go to any product. अब क्या हो रहा है ना, हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट है, टू केसेस लेते हैं। केस नंबर वन कि मेरा इस प्रोडक्ट का एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, Mm-hmm. न्यू प्रोडक्ट। दिस इज अ सीरम। Let's say I'm launching a C Beyond Kahi face wash. Okay. So I have to make a new page. Now, new page cannot be built in a day, right? It's gonna take time. So until and unless मेरा new page is done, मेरा new page is completed, तब तक मैं उसको लाइव नहीं कर सकती। तब तक I won't ask Google to show it in search engine because या मान लो मेरा पेज बन गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पेज बन गया है, 4 मई को मेरा पेज कंप्लीटेड है, बट मेरे प्रोडक्ट की लॉन्च डेट 10 मई को है। तो 4 मई से 10 मई तक क्या हम ये पेज को गूगल पे दिखा सकते हैं? No, 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 no. No, right? So in cases like this, okay, another last case. A lot of times मुझे क्या करना है, मुझे इस पेज का एक नया लेआउट ट्राई करना है, यू नो। Let's say somebody, some ex-developer or some ex-company who tried to approach me. उसने मुझे बताया कि इस पेज का ये वाला लेआउट ज्यादा बेटर लगेगा। Now, I want to try out that layout. ठीक है? तो यानी कि इस पेज का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, करेक्ट? इस पेज का मैं डुप्लीकेट ही क्रिएट करूंगी ना, टू सी हाउ दैट लेआउट लुक्स। लाइव पेज पे अगर मैं चेंजेस करूंगी एंड somebody comes to look at it, तो मेरा लाइव पेज बिगड़ जाएगा। So when I have to create a duplicate page with a new layout or something and see how it looks,
तब मैं क्या करूंगी, तब भी मैं उस पेज को प्राइवेट करूंगी. So there are a lot of cases जिसमें we need to put pages in robots.txt file. Is that clear? Yes, that's right, ma'am. That's right. That's right. आपको समझ में आ गई? It's clear, ma'am. Clear. Okay. Please robots.txt file का definition लो, note down कर लो. Yes, please let me know when it's done. Great. Great. So robots.txt file is clear. Now let's go ahead and see what are sitemaps. सबने मैप्स देखे कि मैप्स कैसे लगते हैं, गूगल मैप या कोई भी मैप, या पहले के जमाने में जो मैप्स मिलते थे पेपर पे. ठीक है, वो हम सबने देखे. बेसिकली अगर मैं एक एरिया का मैप कंसिडर करूँ, तो क्या होता है कि एक एरिया का जो मैप है वो मुझे क्या बताता है कि उस एरिया में कौन कौन सी जगह है, उस एरिया में कौन कौन से बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट, उस एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, राइट. एंड सेम इज द केस विद गूगल मैप. ठीक है, ये सबको पता है. एवरीबडी हैज सीन अ मैप, आई एम श्योर. कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा होगा ये. तो अब एक साइट मैप क्या होता है? साइट मैप भी एक सिमिलर चीज है, कोई नई चीज नहीं है. साइट मैप इज बेसिकली एक लिस्ट होती है जितने भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं आपके वेबसाइट के, जो आप चाहते हो कि गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो हो. यानी कि वो सारे पेजेस जो आप चाहते हो कि क्रॉल हो, इंडेक्स हो और रैंक करे, उन सारे पेजेस की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सएमएल साइट मैप. एग्जाम्पल के लिए समझो कि आप गूगल को एक ब्रोशर दे रहे हो, जब वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, जो ब्रोशर ये बता रहा है कि मेरी वेबसाइट में ये पेजेस हैं जिनको रैंक करना है. आई रिपीट अगेन, व्हाट इज एन एक्सएमएल साइट मैप? एक एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? एक्सएमएल साइट मैप का मतलब है एक ऐसी फाइल जो आपके सारे इंपॉर्टेंट पेजेस, यानी कि नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, एवरी सिंगल पेज जो आप चाहते हो कि गूगल क्रॉल करे, इंडेक्स करे और सर्च इंजन रैंकिंग्स में आए, those pages, those that file containing the information of all these pages is known as an XML sitemap. Wait out, guys. Ma'am, doubt नहीं है, just a confirmation. So, robot text is just I'm just comparing these two. So, sitemap says which pages you should go and how rank.
and robotext says where you can go and cannot go. No, So robots.txt contain कौन से पेजेस को रैंक कराना है, कौन से को नहीं करवाना है, right, and sitemap says XML कौन से को करवाना है, that's it. इसमें केवल वो होते हैं जो करवाने, right? Yes. Okay, thank you. Guys, any more questions? Please chat box में डाल दो. Please XML sitemap का definition लिख लो. Let me know when it's done. Let's quickly have a recap. SEO audit क्या होती है? SEO audit is like a health checkup of your website. वो आपको बताता है कि आपके वेबसाइट पे क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी चीज आपको इम्प्रूव करनी है, कौन सी चीज आपको इम्प्रूव नहीं करनी है. दैट इज मतलब SEO ऑडिट. SEO ऑडिट्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज टेक्निकल SEO ऑडिट. Anjali, see, you have to be very specific with Google. robots.txt फाइल का फोकस होता है जो पेजेस को नहीं दिखाने हैं उनको ब्लॉक करवाने का, जबकि साइट मैप का फोकस होता है जो पेजेस को शो करने हैं उनका. सिंस उनका फोकस अलग है, आपको दोनों फाइल्स देनी पड़ेगी. गूगल के साथ आप जितना स्पेसिफिक होगे उतना ही वो आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा. सिंपल एज दैट. दोनों के फोकस अलग है. अगेन, robots.txt फाइल का फोकस है कि कौन से पेजेस को शो नहीं करवाना है, उनको ध्यान रखने का, जबकि साइट मैप्स का फोकस है कौन से पेजेस को रैंक करवाना है उसका. This is why you have to give them both files.
ओके, नाउ हम आते हैं टेक्निकल ऑडिट पे। टेक्निकल ऑडिट क्या होती है? टेक्निकल एसईओ ऑडिट इज जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वो जल्दी लोड होती है नहीं है, उसके पास एक HTTPS है या नहीं है, कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, रोबोट्स और TXT फाइल सेटअप है या नहीं है, और XML साइट मैप है या नहीं। ठीक है, नाउ रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होती है? रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो सर्च इंजन को ये बताती है कि कौन से वेबसाइट के कौन से पार्ट्स उसको रैंक करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने हैं। व्हाट इज एन एक्सएमएल साइट मैप? एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? एक ऐसी फाइल होती है जो जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं ये वेबसाइट पे जो भी रैंक करवाने हैं उनको बताती है। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बाकी सबको भी आवाज नहीं आ रही क्या? सूर्यांश में भी आपका इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, सो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी और एक्सएमएल साइट मैप दोनों ही जरूरी है, बिकॉज रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का जो फोकस है वो ये है कि आपके वेबसाइट पे कौन से पेजेस रैंक नहीं करवाने हैं, पेजेस नहीं रैंक करवाने हैं उनको नोट डाउन करने का, उनको नहीं दिखाने का। जबकि साइट में आपको फोकस है कि जो पेजेस को रैंक करवाने हैं उनको ध्यान रखने का। इसलिए ये दोनों टाइप की फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगेन, आप जितना स्पेसिफिक होंगे गूगल के साथ उतना बेटर है, बिकॉज देन ओनली गूगल कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज गाइस लेट मी नो। डाउट आगे बढ़े। ग्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा यार? मैं तो ऑलरेडी कितनी बार बता चुकी हूँ। बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन पेज? Ma'am, on page SEO, I think there is a meta title there and meta description there. So, which says that the title that explains what website or search is about. That is, I think, meta title. And these two things, meta title and meta description, these are the part of on page SEO. Is that right? Partially correct. Everything that is on a page or on a website जो आपको एज अ यूजर दिखता है, यानी कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स, कंटेंट, इमेजेस, यूआरएल, एवरीथिंग जो भी एज अ यूजर, अंजलि यू आर राइट, अंजलि हैज गिवन द राइट आंसर। एवरीथिंग विच इज देयर ऑन द वेबसाइट जो एज अ यूजर आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज ऑन पेज।
Get out. Yes, every single thing. मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग टैग्स हैं, एवरी सिंगल थिंग वट एवर एज अ यूजर आप देख सकते हो, वो सब कुछ इज ऑन पेज। समझो, ऑन पेज, ऑन इज पेज के ऊपर, पेज के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है एज अ यूजर, दैट इज नोन एज ऑन पेज। ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में हम ये चेक करते हैं कि कौन से पेजेस अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। राइट। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हर पेज का यूनिक मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है या नहीं है। ऑल्सो एक बात समझो, एक बात समझो, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट होती है। ओके। एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से ज्यादा मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? तो मेटा टाइटल की लेंथ क्या होती है? मेटा टाइटल इज 50 to 60 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि उसमें जो स्पेस भी आ रही है, एवरी लेटर, एवरी स्पेस इज काउंटेड एज अ कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? एवरी लेटर, एवरी स्पेस इज काउंटेड एज अ कैरेक्टर। तो मेटा टाइटल की लिमिट क्या होती है? 50 to 60 कैरेक्टर्स। राइट। इससे ऊपर अगर जाएगा तो भी आपको, कोई भी जगह से आप ऐसी ऑडिट करोगे तो आपको बोलने लग जाएगा कि आपकी जो मेटा टाइटल की लिमिट है या आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट है वो ज्यादा है, आप इसको कम करो। ऐसा नहीं है कि गूगल उसको दिखाएगा नहीं, गूगल उसको दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। बट क्या होगा? व्हाट व्हाट इज गोना हैपन? ये देख रहे हो ये, डू यू सी दिस 3 लाइन्स हियर? ये क्या हो रहा है कि इनका जो मेटा टाइटल है, सी, हियर ऑल्सो इनका जो मेटा टाइटल है, दिस इज एक्सीडिंग द 50 to 60 कैरेक्टर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूजुअली जब आप ऐसी ऑडिट करोगे, ये रिकमेंडेड लेंथ है जो गूगल ने दी है। अब क्या होगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे? तो वो पहले के 50 60 कैरेक्टर्स दिखाएगा, उसके बाद ही ऐसे डॉट डॉट शो कर लग जाएगा। सो इट्स बेटर इफ यू पुट इट इन 50 to 60। इफ नहीं हो पाता तो इट्स गोइंग टू शो इट लाइक दैट। सिमिलरली मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट होती है, दैट इज अगेन 150 to 160 कैरेक्टर्स। टाइटल की होती है 50 to 60, मेटा डिस्क्रिप्शन की होती है 150 to 160। सो नाउ व्हाट हैपेंस इट कि अगर 150 to 160 से ज्यादा जा रहा है तो इट्स गोइंग टू शो दीज डॉट डॉट्स अगेन एंड अगेन। अगेन रिकमेंडेड बाय गूगल इज कि आप 150 to 160 के अंदर रखो, बट ड्यू टू सम रीजन इसको एक्सटेंड हो रहा है तो इट्स गोइंग टू शो लाइक दिस। इज इट क्लियर? गाइस कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो। ओके। सो नंबर 1 पॉइंट ऑफ ऑन पेज एसईओ इन हमको ये चेक करना है कि मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए हर पेज का। कोई भी
कोई भी यू नो 2 पेजेस का सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी पेजेस का मैच नहीं करना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. It should not be the same. It should not be copied. It should not be AI written, right? And it should not go out of limit. So meta title and meta description are very important because because it helps in understanding कि आपके वेबसाइट किस बारे में है, आपकी वेबसाइट लोगों को क्या बता रही है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है और क्या करती है. That is why again make sure that your website always have not only website और पेज. वेबसाइट में अगर 20 पेजेस हैं तो 20 के 20 पेजेस. Understand? All 20 pages should have unique meta description, a unique meta title. Is that clear, guys? अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, we'll continue on page SEO in the next class. अभी तक हमने जो भी करा है उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Guys, please let me know if you have any doubt, else we'll end the class. मैम हेलो। Mm-hmm. इस क्लास के रिगार्डिंग नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास का जो डाउट्स था मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है। अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। Sure, I'll do that. Don't worry. ओके मैम, थैंक्स। Okay, that's guys. Thank you so much. Have a lovely weekend. Bye bye.